الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز بھائیو، رمضان کی آمد ہے، تو آج ہم انشاءاللہ رمضان کے کچھ احکامات بیان کریں گے کہ جن کی مسلمان کو ضرورت ہے، اور وہ احکامات وہ ہیں کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ کیا چیزیں ہیں، اور کیا وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں، ان کی اجازت ہے۔ تو روزہ اصل میں نام ہی کسی چیز سے رک جانے کا ہے۔ روزے کا معنی صوم کا لفظ جو ہے کسی چیز سے رکنے کا نام ہے۔ تو رکنا کس چیز سے ہے؟ وہ چیزیں جو اللہ نے ہمیں منع کی ہیں روزے کی حالت میں، ان سے رک جانا۔ اس میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ کھانا پینا ہے، کہ جان بوجھ کر اگر آدمی ایک قطرہ بھی گلے میں اتار لیتا ہے، معمولی قسم کا دانہ بھی گلے میں اتار لیتا ہے، تو اس روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کھانا پینا روزے کی حالت میں منع ہے، اور اسی طرح ہر وہ چیز جو کھانے پینے کے معنی میں آتی ہے۔ اب بعض وہ چیزیں ہیں جسے کھانا پینا تو نہیں کہا جاتا، لیکن ان چیزوں سے کھانے پینے کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ آج کل اس طرح کی طرح کی چیزیں ہیں، جس طرح کے گلوکوز کی ڈرپس ہیں، طاقت کی انرجی کے انجیکشن ہیں، ایسی چیزیں جس سے انسان کو انرجی حاصل ہوتی ہو، طاقت ملتی ہو، اور اس کو غذائیت حاصل ہوتی ہو، تو ایسی ہر وہ چیز اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ کھانے پینے کا معنی پورا کر رہی ہے، اسے کھانے پینے کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہاسپٹل میں جس کو آپریشن وغیرہ کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اس کا کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، اس کو ڈرپ لگا دیتے ہیں، اور ڈرپ لگنے سے آدمی اپنی قوت طاقت پوری محسوس کرتا ہے کہ بحال ہے، اور کسی طرح کی کمزوری محسوس نہیں ہوتی اس کو۔ اس کا معنی ہے کہ اس کو غذائیت مل رہی ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں ہر وہ چیز جس میں انسان کو غذائیت مل سکتی ہو، ایسی چیز اگرچہ وہ ڈرپ کی شکل میں، انجیکشن کی شکل میں بھی کیوں نہ ہو، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ کھانا پینا اور ہر وہ چیز جو کھانے پینے کے معنی میں آتی ہے۔ لیکن ایسے انجیکشن جو کھانے پینے کا معنی نہ دیتے ہوں، جس میں انرجی طاقت نہ ہو، جس میں غذائیت نہ ہو، ایسے انجیکشن روزے کے حالت میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ انسولین ہے، کسی بخار کا، تکلیف کا، بیماری کا انجیکشن ہے، سمجھے نا؟ ایسے انجیکشن لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان انجیکشن سے انسان کو خوراک نہیں مل رہی۔ اسی طرح جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر طے کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جان بوجھ کر طے کرے وہ روزہ قضا کرے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور جس کو ویسے طے آ جائے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ حجامہ کروانا، حجامہ جو جسم سے گندا خون نکالا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ باتیں افطر الحاجم والمحجوم، حجامہ کرنے والا بھی اور جو حجامہ جس کا کیا جاتا، دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اور سابقہ زمانوں میں حجامہ کرتے ہوئے کیا کرتے تھے کہ حجامہ کرنے والا ایک سینگ کی طرح جسم پر کوئی چیز لگاتا تھا، اور پھر اس سے خون کھینچتا تھا اپنے منہ سے، تو اس کے منہ میں خون چکے جانے کا امکان ہوتا ہے۔ اسی آپ ماتے کہ حجامہ کرنے والا کو روزہ ٹوٹ گیا، اور جس کا کیا جاتا اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن موجودہ دور میں اس کی بجائے مختلف طرح کے کپ وغیرہ ہوتے ہیں کہ جس میں خون کھینچنے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ کپ ہی اندر سے آکسیجن کے ساتھ خون کھینچ لیتے ہیں، تو وہ اب وہ چیز نہیں ہے، لیکن جو حجامہ کرواتا ہے اس کا روزہ ٹوٹتا ہے۔
इसी हिजामा पर उलमा ने कयास किया है हर वो चीज़ जो ज़्यादा खून जिससे इंसान निकलवाता है, जिससे खून दिया जाता है डोनेशन के तौर पर, ज़्यादा खून, तो उसमें भी रोज़ा टूट जाता है। अगर फ़र्ज़ करो किसी को ज़रूरत है रोज़े के हाथ में खून देने की किसी को, तो रोज़ा तोड़ सकता है, छोड़ सकता है, बाद में उसको कदा कर ले और खून दे सकता है, क्योंकि एक मजबूरी की हालत है। लेकिन अगर बाद औक़ात हम खून देते हैं टेस्ट के लिए, जो आमतौर पर 10-15 मिली होता है, थोड़ी मकदार में होता है, तो ऐसा खून निकालने से या इतना खून देने से रोज़े के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, रोज़ा ठीक है। इसी तरह जिन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, और बल्कि सबसे बड़ी वो चीज़ है और जिस पर बहुत बड़ा कफ़ारा भी है कि रोज़े की हालत में हम मिस्सी करना, और ये वो चीज़ है कि जिससे रोज़ा टूट भी जाता है, और बल्कि इस पर बहुत बड़ा कफ़ारा भी आता है। कफ़ारा क्या है? ग़ुलाम को आज़ाद करना, जो कि आजकल नहीं है। तो उसकी ना होने पर क्या है कि 60 दिन के 2 महीने के मुसलसल रोज़े रखने, 2 महीने के मुसलसल रोज़े रखने उसका कफ़ारा है। और जो ना रख सकता हो, कमज़ोर हो, उसे 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। तो ये है, अगर रोज़ा आदमी तोड़ देता है इस चीज़ से, तो ये वो चंद चीज़ें हैं जिनके बारे में अहादीस में आता है कि जिनसे रोज़ा टूटता है। अब इनके अलावा क्या वो चीज़ें हैं जो हम रोज़े की हालत में कर सकते हैं? खुसूसन मेडिसिन में से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके बारे में हमें इल्म होना चाहिए कि उनमें से किन से रोज़ा टूटता है, किन से नहीं टूटता। तो हर वो मेडिसिन जो खाई जाती है, मैदे में जाती है, चाहे उससे खुराक मिलती हो या ना मिलती हो, उससे रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि मैदे में जा रही है। तो हर वो चीज़ जो मैदे में जाती है, चाहे वो खाने पीने की हो या खाने पीने की ना भी हो, उसमें ग़िज़ाइयत हो या ना हो, तो जो भी चीज़ मैदे में जा रही है उससे रोज़ा टूट जाता है। लेकिन मैदे के अलावा और चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह इंजेक्शन की हमने बात की है, इन्हेलर इस्तेमाल किया जाता है। किसी को सांस की प्रॉब्लम है तो इन्हेलर का ताल्लुक किससे है? उसका मैदे से ताल्लुक नहीं होता, उसका फेफड़ों से ताल्लुक है, सांस की नालियों से ताल्लुक होता है। तो इन्हेलर जो है, जब इंसान लेता है, सांस खींचता है, तो इन्हेलर के अंदर से जो पाउडर निकलता है वो कहाँ जाता है? वो सांस की नालियों में जाता है, मैदे में नहीं जाता। तो फिर क्या इन्हेलर इस्तेमाल कर सकते हैं? इन्हेलर जो है इस्तेमाल किया जा सकता है रोज़े की हालत में। अच्छा, ऑक्सीजन ली जाती है बाबू का। ऑक्सीजन के अंदर भाप होती है, पानी होता है, और ये पानी वैसे तो ऑक्सीजन वो अपने हवा की नालियों में जाती है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर जो पानी है वो पानी मैदे में जा सकता है गले से उतरकर, इसलिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना, उससे रोज़ा टूट जाएगा। अगर इंसान को ज़रूरत है तो रोज़ा छोड़ सकता है, अगर ज़रूरत है उसको ऑक्सीजन की, वरना यह है कि रोज़े के हाथ में इसका इस्तेमाल ना किया जाए। इसी तरह दांतों का इलाज करना, तो दांत ना निकालना है, कोई दांतों का इलाज करना है। अब दांत चूँकि मुंह के अंदर है, और मुंह के अंदर है तो फिर ज़ाहिर बात है कि खून भी निकलता है इसमें से, और बाल का बल्कि हमेशा डॉक्टर जो है दांतों का इलाज करते करते पानी भी डालते हैं। तो वैसे तो बताते खुद दांतों के इलाज का रोज़े से कोई ताल्लुक नहीं है कि उससे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन सिर्फ इसमें चूँकि ख़तरा होता है गले में कोई चीज़ उतर जाने का, पानी वगैरह उतर जाने का, खून वगैरह गले में चले जाने का। तो अगर आदमी इस चीज़ से एहतियात कर सकता है तो रोज़े की हालत में दांतों का इलाज करवाया जा सकता है। और अगर उसको ख़तरा है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा और पानी गले से उतर सकता है या खून वगैरह अंदर जा सकता है, तो फिर उसको चाहिए कि वो रोज़े की हालत में नहीं कि दाढ़ों का इलाज न करवाओ और शाम को इफ्तारी के बाद करवा दे। इसी तरह बाद ऐसी टेबलेट है, एक दिल की टेबलेट होती है जो ज़बान के नीचे रखी जाती है, और उस टेबलेट के ज़बान की शरियानियों के ज़रिए से दिल पर उसका असर पहुंचता है और दिल तक उसकी तासीर होती है। तो क्या ये टेबलेट इस्तेमाल की जा सकती है? हाँ, ये टेबलेट जो है इसका मैदे से कोई ताल्लुक नहीं, ये शरियानों के लिए सिर्फ दिल के साथ इसका ताल्लुक होता है, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
अच्छा, आंखों में, नाक में, कान में ड्रॉप्स इस्तेमाल करना। जहाँ तक नाक का ताल्लुक है तो नाक हम जानते हैं कि सीधा गले के साथ मिला हुआ है, तो नाक में कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से एहतियात करना चाहिए। नाक में खुसूसन ड्रॉप्स वगैरह ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने से एहतियात करना चाहिए रोज़े के हाथ में, क्योंकि गले में जा सकती है। इसी अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वضو करते हुए नाक में अच्छी तरह ऊपर तक पानी चढ़ाओ, सवाए ये कि तुम रोज़े की हालत में हो तो फिर एहतियात करो। इस हदीस से हमें क्या मिलता है कि नाक में कोई भी चीज़ इस्तेमाल करना हो जो गले में उतर सकती हो तो उसमें हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। लेकिन आँखों और कान, इनमें ड्रॉप डाल सकते हैं। आँखों का गले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और न ही कानों का गले के साथ कोई ताल्लुक है। लेकिन आप कहेंगे कि बार औक़ात हम आँख में कोई ड्रॉप डालते हैं तो गले में उस ड्रॉप का कोई ज़ायक़ा या कड़वाहट महसूस होती है, या कानों में कोई ड्रॉप डालते हैं तो गले में उसके कड़वाहट या उसका ज़ायक़ा महसूस होता है। तो ये सिर्फ ज़ायक़ा महसूस होता है कि जो जिस्म के अंदर से शरियानों के लिए सिर्फ ज़ायक़ा पहुँचता है, वरना ड्रॉप जो है वो गले तक नहीं पहुँचता। आँखों और कानों में डाला हुआ ड्रॉप गले तक नहीं पहुँचता। इसलिए आँखों और कानों में ड्रॉप इस्तेमाल करना हो, आँखों में सुरमा लगाना हो, कोई भी ऐसी चीज़ करना हो, कानों को वाश करना हो, समझे ना, ऐसी चीज़ें रोज़े के हाथ में की जा सकती हैं। उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि आँखों और कानों का गले के साथ कोई ताल्लुक नहीं बराह रास्त। तो इसी तरह और भी चीज़ें हैं जो रोज़े के हाथ में इस्तेमाल करना पड़ती हैं। एंडोस्कोपी होती है बाल औक़ात मैदे की, अंतड़ियों की, उसका क्या हुक्म है? क्योंकि उसमें आलात जो है वो अंदर दाखिल किए जाते हैं, मैदे के अंदर तक पहुँचते हैं, अंतड़ियों के अंदर तक पहुँचते हैं। तो अगर तो सिर्फ आलात ही हैं, उनके ऊपर कोई ऐसी ग्लिसरीन वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं लगती, तो फिर तो वो लोहा है, उसके अंदर जाने से वो लोहा बाहर निकलेगा, दाहिर निकल आएगा, वापस निकल आएगा, तो उसके सिर्फ दाखिल करने निकालने से रोज़े के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, समझे ना। लेकिन अगर बाज़ औक़ात उन आलात के ऊपर कोई ऐसे ऑयल वगैरह इस तरह की चीज़ें ग्लिसरीन में इस्तेमाल की जाती है ताकि उनका दाखिल होना आसान हो, तो इन चीज़ों के अंदर चूँकि ग़िज़ाइयत होती है ग्लिसरीन वगैरह के अंदर, और मैदे के अंदर जाती हैं और अंतड़ियों के अंदर बल के जाती हैं, तो फिर रोज़ा टूट जाता है। आप कहो कि अंतड़ियों का क्या ताल्लुक है? अब मैदे से मैदा ग़िज़ा को हज़म करता है और असल उसकी ग़िज़ाइयत कहाँ से निकलती है? अंतड़ियों से। अंतड़ियों में जब वो ग़िज़ा पहुँचती है तो अंतड़ियाँ फिर उसमें से वो ग़िज़ाइयत चूसती हैं, खून बनता है, सारा कुछ होता है। इसलिए अंतड़ियाँ ही असल आपके सारे जिस्म का जो इनके ग़िज़ाइयत का दारोमदार उस पर है। मैदा सिर्फ हज़म करने की जगह है, समझे? इसलिए अंतड़ियों के अंदर भी अगर कोई ऐसी चीज़ जाती है एंडोस्कोपी वगैरह के ज़रिए से कि जिसमें ग़िज़ाइयत पहुँच सकती हो, तो उससे रोज़ा टूट जाता है। स्पोर्ट्री वगैरह इस्तेमाल की जाती है बाज़ औक़ात, इससे भी एहतियात करना चाहिए इंसान को, क्योंकि इसका भी चूँकि अंदर से अंतड़ियों के अंदर आती हैं और अंतड़ियों के अंदर ग़िज़ाइयत पहुँच सकती है, तो इनका भी रोज़े के हाथ में एहतियात करने की ज़रूरत होती है। तो ये वो चंद चीज़ें हैं कि जिसका हमें इनके रोज़े के हवाले से एहतियात करना है रोज़े की शक्ल में। लेकिन मालूम होना चाहिए कि रोज़ा सिर्फ उन्हीं चीज़ों से टूटता है जो आदमी जानबूझकर करता है। खाना पीना हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो रोज़ा तोड़ने वाली है, पता है कि इससे रोज़ा टूटता है और पता है कि ये चीज़ मना है, और याद है आदमी को कि मैं रोज़े की हालत में हूँ। नबी को फरमाते हैं कि जो आदमी भूल कर खा पी ले, अपने रोज़े को पूरा करे, तो क्या अल्लाह ताला उसको खिलाया पिलाया है। अगर आदमी भूल कर कुछ खा पी लेता है तो उसका रोज़ा सही है और उसको रोज़ा कज़ा करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसमें यहाँ पर एक और चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आप फ़र्ज़ करो पानी पी रहे हो भूल कर, और पानी पीते पीते आपको याद आ गया कि आपका तो रोज़ा है। अब जो पानी गले से उतर चुका वो तो गया, समझे, लेकिन जो अभी तक आपके मुंह में है, अब अगर याद आने के बाद वो घूंट उतार लेंगे गले पे तो रोज़ा टूट जाएगा। क्योंकि बाज़ औक़ात हम इसमें भी एहतियाती कर देते हैं कि याद आने के बाद भी कोई चीज़ गले में फिर से उतार देते हैं, तो जो चीज़ आपको याद आने के बाद गले में आपने उतारी है उससे रोज़ा आपका
टूट जाएगा। लेकिन जो याद नहीं था और आप खा पी चुके हैं, उस पर उसका कोई असर नहीं, उसका कोई हुक्म नहीं, और उस पर कोई कफारा, कोई कदा नहीं। तो ये थी वो चंद चीज़ें जिससे रोज़ा टूटता है, जिससे हमें रोज़े के हाथ में एहतियात करने की ज़रूरत है। उसके बाद कुछ वो चीज़ें हैं कि जिससे रोज़ा टूटता तो नहीं है, लेकिन रोज़े के सारे मकासद फौत होते हैं, ज़ाया होते हैं। उसके बारे में आपका फरमान है, मन लम यदअ क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही वल जहल फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ ताअमहु व शराबहु, कि जो आदमी रोज़ा रख कर भी गाली गलौज, झूठ, चोरी, ग़ीबत, इन कामों को छोड़ता नहीं है, तो अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं कि ऐसा आदमी भूखा प्यासा रहे। इसलिए रोज़ा, जिस तरह हमने साहब का मुलाकात में जिक्र किया था कि इबादत है, तकवा, नेकी का सबक देता है बहुत बड़ा। इसलिए ज़रूरत है इंसान को कि वाकई ही रोज़े की हालत में अब इस इबादत का ख्याल हो, इस इबादत को मद्देनजर रखे, और कोई भी ऐसा काम न करे जो रोज़े के आदाब के ख़िलाफ़ हो, चाहे कोई करने वाली बातचीत हो, कोई करने वाला अमल हो, देखी जाने वाली चीज़ हो, सुनी जाने वाली चीज़ हो। खुसूसन आजकल मोबाइलों में तरह तरह की बेहूदगियाँ हैं, तो इंसान को चाहिए कि ऐसी चीज़ों को अपने से दूर रखे हर हालत में ही, और खुसूसन रोज़ा की हाल में। एक दूसरी हदीस में आप पाते हैं कि ऐसे भी रोज़ेदार होते हैं कि जिनको रोज़े से सिवाय भूख प्यास के और कुछ हासिल नहीं होता। ऐसे भी रात को तरावी क़याम करने वाले होते हैं कि जिनको सिवाय थकावट के और रात जागने के और कुछ नहीं मिलता। इसलिए ज़रूरत है इंसान को, अगर रोज़े को उसका अजर लेना चाहता है तो रोज़े की हिफाजत करे, बल्कि कोई नेकी, अपने औकात को नेकी और अल्लाह ताला की इताअत के इन चीज़ों के अंदर मसरूफ़ रखे, और हर तरह की बुराइयों से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें। बारकल्लाहु फ़ीक व जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो इंशाअल्लाह रमज़ान में हमारा प्रोग्राम जो है, कोशिश होगी कि असर के बाद रहे। तो अभी इमाम साहब के साथ सेटिंग चल रही है, क्योंकि फ़िलहाल इनका शुरू है कोई असर के बाद अरबी प्रोग्रामों का। तो हमने इनसे कहा है कि बुध के दिन हमारा इंशाअल्लाह असर के बाद हमारा उर्दू प्रोग्राम है करेगा। तो साथ ही इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाया करें, ताकि रमज़ान के अहकाम व मसाइल मज़ीद उसमें जो इंशाअल्लाह वो हम बयान करते रहें। बारकल्लाहु फ़ीक।